students. Can you all hear me? हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes. आज हम स्लाइड शेयर किए So today we are going to talk about these notes, about the topics in these notes, and we are also going to talk about another topic or start a new topic, which is your ecology and ecosystem. That topic includes your second chapter. So before coming to that particular topic, let's revise whatever we have studied and take up all the points. जो भी points के बारे में बात कर रहे थे, discuss कर लेते हैं. Okay. So last class में we were talking about what is environment. So we already know environment is something that is basically present in the vicinity of any particular organism. ठीक है, चाहे वो plants हो animals हो, वो उसके environment में आता है. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था वो ये कि एनवायरनमेंट सिर्फ आपका फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं होते हैं, सोशल और कल्चरल कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं, इसलिए वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है. That we were talking about in the last class. ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे थे. So you can I'll share the notes with you today. So when we talked about objectives, we talked about awareness, about knowledge of environment and how it's useful, how we can acquire it. So we can acquire it by using focus groups, tech talks, research articles, observations. ठीक है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स रिसर्च ग्रुप्स में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं environment के बारे में. Attitude, when you are talking about attitude, you are talking about building motivation for active participation in environmental improvement and protection. Yes, skill development के लिए to develop skills in identifying and solving the environmental problems. That is what we were talking about in terms of objectives. Right. Then we talked about importance of environmental studies. So I gave you 7 points. So these are the 7 points. So conservation of energy, economic boost of growth, better health of people leads to improved economic productivity of the nation. So example में आप अभी की current situation लिख सकते हो. ठीक है, conservation of natural resources, current state of natural resources and conservation of natural resources. Example आप यहाँ पे put in कर सकते हो. Conservation of natural resources is a critical step to maintain ecological balance. Okay. Impart knowledge about management of waste, treatment of disposal techniques, away from hazards. Social responsibility है, तो ये सारे points हम already cover कर चुके हैं. So today when I share this slide with you, you can go through them. Next we were talking about the role of scientists. So when we talk about role of scientists, I talked about 2 research labs in Delhi and then I talked about what is their role. So their role is to first of all perform a scientific assessment, then do risk analysis, public को educate करना है, जो भी risk या जो भी data आपने derive किया है उससे क्या public को effect हो सकता है, उसको आपको educate करना एक scientist का role है. ठीक है, उसके बाद political action.
So political action क्या होना चाहिए? Like government should also get involved or should hold some campaigns or some measures or fines करना चाहिए. Evaluation. So these were the role of scientist का क्या रोल है. So इन सब points पे major ऐसे type questions आ जाते हैं अगर offline exams होते हैं. So we don't know about the upcoming situation. So one should be prepared in both ways, in offline and online mode or MCQs. Okay. So next point was solution towards global issues. So when we talk about solution, as a result of awareness, society has started finding solutions to the problems we already know it. Progress has been made to establish laws, policies, and treaties in controlling air and water pollution, reducing wasteful resources. Wasteful use of resources. So these were the points we were talking about. Then the need for public awareness. I've already given you the points and discussed about it. So then we talked about formal and non-formal education. So when we talk about formal education, we talked about the एजुकेशन इन स्कूल सिस्टम. ठीक है, जो मिडिल स्कूल में करिकुलम में ईवीएस का चैप्टर आपके लिए इंक्लूड होता है या फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ईवीएस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है. दीस इज ऑल अ पार्ट ऑफ formal education system. Then we talked about in college and universities the courses are available. ठीक है, environmental appreciation course कराता है एक. So this is what we talked about in terms of formal education system. Now when you एक्सक्यूज talk मी about, मैम. yes please. मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. बहुत लो आ रही है. I'm using the mic and यस मैम. अभी कुछ बेटर है. I've changed the settings. Microphone. Yeah. Just give me. Is it better now? Hello? यस मैम. Is it better now? I'll speak a bit loudly because internet issues तो नहीं है, but I don't know with the system what is happening. So I hope you can hear me now. तो स्लाइड को हम फॉलो करते हैं. जहाँ जहाँ पे अगर आपको कहीं पे मेरी आवाज नहीं आती है तो यू कैन जस्ट stop me and I will speak loudly or just help you with the cursor. Okay. So when we talk about non-formal education system, we were talking about जहाँ पे कि नॉन फॉर्मल का सीधा सीधा मतलब ये है कि करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है, किसी एकेडमिया या इंस्टीट्यूट में कोर्स नहीं है. आप सिर्फ अपनी मर्जी से या विलिंगनेस से किसी एनजीओ को ज्वाइन कर रहे हो या फिर सेमिनार्स वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हो. ठीक है, कैंप्स अरेंज कर रहे हो, ऐसे डिबेट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो. सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि National Environmental Awareness Campaign since 1986 it's running और इसके लिए financial assistance भी provide करती है government. So what is happening is provided to NGOs, schools, colleges, research institutions, women and youth organizations. So basically this is a method of non-formal education system. Okay, last time I did not put these in the slide, so I'm just covering them up now. So when we talk about eco clubs, I showed you a picture of eco clubs. So what happens in eco clubs? They started in 1993. A large number of eco clubs have been provided grants in various parts of the country. Okay, schools में, colleges में eco clubs चलते हैं. And this was launched in 2000. National Green Corps is one another form of organization, which was it's an eco club. It was launched in 2001, 2002. Under this program, eco clubs are being used to set up more than 100 schools in each district. मतलब ये कि जो National Green Corps है, ये पूरा organization है which was started in 2001 and 2002 और इसमें क्या है, schools को provide करनी जाती है aid to hold eco clubs. ठीक है, eco clubs में आप participation करोगे, बच्चों को poster prizes, quiz competitions कराओगे just to make them aware about environment and make them actively involved. ठीक है, financial assistance is provided by Government of India for establishment of eco clubs, trainings by master trainers, teachers, training and distribution of resource material. तो government भी इसमें actively participate करती है.
लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि 5 अवेयरनेस प्रोग्राम्स कोई आप एग्जांपल्स के तौर पे अपने लिए रखना, जैसे कि एग्जाम टाइम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें यू आर एबल टू पुट अप द examples. So one such example is GLOBE या फिर Global Learning and Observation to Benefit Environment. So this is an international program. It started in August 2000 and hands-on participatory approach होती है इसमें. Students of Globe School collect data about various environmental parameters under the guidance of Globe trained teachers. Further, this data is used by scientists in their research work. Globe headquarters are in यूएसए. ठीक है, तो इस टाइप के नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, मास अवेयरनेस होते हैं. ठीक है, दूरदर्शन एंड अदर चैनल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग एनवायरनमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स. ठीक है, अदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर ग्रीन ओलंपियाड हेल्ड बाय टीवी. 80,000 स्कूल स्टूडेंट्स इंडिया, रशिया, यूएई सबसे पार्टिसिपेट करते हैं इस टाइप के प्रोग्राम्स में. सो दिस इज अबाउट योर नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. तो जब भी आपके लिए ये टॉपिक आता है या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, सो यू आर गोइंग टू पुट अप ऑल दीज पॉइंट्स और व्हाटएवर यू कैन डू. ठीक है, सो इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स है. अर्थ डे अभी सेलिब्रेट हुआ था 21 अप्रैल को. ठीक है, फिर रिटन क्विज कॉम्पिटिशंस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गो थ्रू दीज. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक विच इज योर ग्रीन टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी? Green technology in basically it's a boon to mankind and it started in 20th century. And what was the purpose? It was the purpose of basically this green technology was to cut down the effects of or the hazardous effects of technology towards mankind. तो सिंपल वर्ड्स में मतलब ये कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का सारा फोकस, जैसे कि इसका वर्ड डिफाइन करता है ग्रीन, इसका सारा फोकस इस टेक्नोलॉजी का ये रहता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं या एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके ऐसा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करना जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली the purpose of a green technology. So overutilization and exhaustion of natural resources should be avoided. Pollution should be controlled. So green technology is also called as clean tech or clean technology is the application of EVs to conserve the natural environment and resources by curbing the negative impact of human involvement. Okay. It's a step to generate technology that will restrict generation of toxic byproducts. So basically green technology का काम सिंपल ये है कि जितना भी hazardous products हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी hazardous आपका या टॉक्सिक आउटकम्स हैं उनको कर्टेल करना या रोकना और उसके अगेंस्ट, उस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट एक ऐसी टेक्निक डेवलप करना which can stop all this. ठीक है, so as an engineer you should always be having this particular thought in your mind कि आप जो भी टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, this should not end up in affecting mankind adversely. ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है which is able to cut down the negative impacts of technology on human health or environment in total. Okay. This is what is green technology is all about. Now, what is the goal of green technology? Green technology तो समझ में आ गया कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि किसी जो ह्यूमन मैनकाइंड है या ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो और एनवायरनमेंट को भी ना हो. सो व्हाट आर द गोल्स? व्हेन यू टॉक अबाउट द गोल्स, अगर आपको डेवलप करना है एक ग्रीन टेक्नोलॉजी तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सस्टेनेबिलिटी. So when we talk about green technology, it will help to meet the present needs of the society without compromising the needs of future generation. Okay. So sustainability is one of the critical parameters. Second point, the second goal is cradle to cradle design. The product thus obtained should not be having any toxic effects to the environment.
ये इसका second point है. Source reduction is the third point. Whenever you are designing any green technology, it should focus on preventing और लेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो तो इट कम्स अंडर योर ग्रीन टेक्नोलॉजी. ठीक है, फोकस इज ऑन रिडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स. जैसे कि अगर ग्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ऐसे कुछ रिएक्शन नहीं यूज करनी चाहिए जिसमें कि या तो रिएक्टेंट ही बच जाए, वेस्ट हो जाए या फिर प्रोडक्ट टॉक्सिक हो. तो बेसिक आइडिया इज टू कंजर्व एंड टू सस्टेन. ठीक है, कोई हैजार्डस मटेरियल ना निकले और आगे की जनरेशन्स के लिए भी हम वो मटेरियल को प्रिजर्व कर सकें, प्रिवेंट कर सकें. सो सोर्स रिडक्शन, इनोवेशन. Green technology will focus on replacement of existing technologies into a cleaner one. अभी जो अगर एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जाए तो वो है आपका इलॉन मस्क का टेस्ला. ठीक है, फोर्ड कंपनी ने या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, डीजल पे या पेट्रोल पे रन करती हैं. ठीक है, देन दे मूव टू सीएनजी. बट टेस्ला इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी and one of the I बहुत ही well known example है. So basically innovation, green technology will focus on replacement of existing technology into a cleaner one. So you can talk about your Tesla. So when we talk about viability, viability is also an important factor. Tesla के साथ क्या है, Tesla is costly. क्योंकि Tesla की जो भी अभी वो डिजाइन कर रहे हैं, they are costly. So over the years, maybe they will be able to come under the category of viable or economical category. ठीक है, मतलब widely use होने लगेगा. जैसे कि cars हैं, petrol cars हैं, diesel cars हैं, they are viable, but they also have hazards towards your environment. Air pollution एक बहुत बड़ा hazard है. Fossil fuels खत्म हो रहे हैं. This is also one of their hazards. So viability is also an important factor. तो ये जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी डिजाइन करें या कल के फ्यूचर के इलॉन मस्क बने, so you should be able to keep all these points in mind. You require a gradual approach, but these are the points, these are the 5 points which have to be taken into consideration when we talk about sustainability, source reduction, innovation, and viability. So this is the task of green technologies. When we talk about area covered under the green technology. तो green technology में जो area है, सबसे पहला जो बहुत common area है जो कि हम बचपन से या स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं, वो है एनर्जी. विंड एनर्जी, जो विंड मिल्स होती है, ठीक है, या जो जियोथर्मल एनर्जी उसको लेकर के जो भी आप, या सोलर एनर्जी, this all comes under the category of green technology under the subcategory energy. ठीक है, when we talk about green buildings, I have shared a link with you and I have shown you pictures of two buildings, two buildings. First of all is the Hyderabad airport and second is Ma'am? yes please. Ma'am, हाँ बोलो बेटा. ma'am, your voice is too low. My voice is low. Yes, ma'am. I'm speaking at the top of my voice. Okay. Let me just check what is happening. Is it okay now? I have just unmuted and muted it, muted and unmuted it again. Can you hear me now? Otherwise, I have to change the speakers. Tomorrow, I'll do that. Yes, ma'am. Ma'am, it is So- still low. Just follow the slide, okay? Tomorrow, I'll change the speaker, okay? I'll fetch another one. Okay, so when we talk about area, so when we talk about area, green buildings is one of the cases. Substances used as building materials and location of the building. So basically, when we talk about green buildings, I've given you an example. I've shared a link with you, so you can go through that. So green building is a kind of building which involves
यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम, जैसे कि सनलाइट का यूज करना इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनिंग, जो ओपन एयर सिस्टम है उसका यूज करना, ठीक है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उसमें इनकॉर्पोरेट करना. सो दीज ऑल दीज पॉइंट्स आर योर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग. ठीक है, so you can write the example of pick up the examples from the link and write them here. So the third point is environmentally preferred purchasing. So avoid buying of toxic substances. So this is basically you should avoid buying plastic material, plastic bottles. ठीक है, उसकी जगह आप ग्लास, स्टील, वुड, टेराकोटा इस टाइप का चीजें ले लो. You can whenever you are writing the answers for this particular subject, you can incorporate your own examples for it. ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल आप अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए लिख सकते हो. ठीक है, the last point is green nanotechnology. So when we talk about green nanotechnology, the first thing that comes to our mind is what is nanotechnology. So basically, nanotechnology means cutting down any material to the size of 100 nanometers. ठीक है, नैनो पार्टिकल का जो साइज है वो 100 नैनोमीटर्स तक होता है. ठीक है, अब वो 3 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है. जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बहुत रीसेंट गूगल पे सर्च करते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, तो ग्राफीन ग्राफीन एक एग्जांपल, एक वर्ड आता रहता है, बहुत मतलब किसी ने सुना होगा. तो हैज एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट ग्राफीन? हेलो, किसी स्टूडेंट ने ग्राफीन के बारे में सुना है? No, ma'am. अच्छा, ठीक है. So basically graphene is nothing but a two-dimensional layer of carbon atoms. ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है जिसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उसका 2 डायमेंशनल फिल्म 3D में नहीं होगा, इट विल बी अ 2D फिल्म. ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, दैट इज ग्रेफीन. ऐसे ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं. अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो मैं आपको नैनो पार्टिकल्स दिखाती लाके. ठीक है, सो बेसिकली नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है आजकल. ठीक है, कहीं पे भी you are able to hear that word. So what is nano? Nano is something which is of the dimensions 10 raised to the power minus 9. ठीक है, that is nano. What is nano particle? Any particle in that dimension. जैसे कि 100 नैनोमीटर्स तक का अगर कोई पार्टिकल है तो that is your nano particle. और उसी से derive होता है next word which is your nanotechnology. ठीक है, so nanotechnology is a technology that uses or utilizes particles or materials of nano dimension. Nano dimension मतलब 10 raised to the power minus 9. ठीक है, तो गोल्ड जो आप येलो कलर का देखते हो, जब आप इसे नैनो डायमेंशंस में लाओगे या फिर 10 रेज टू द पावर माइनस 9 में लाओगे तो उसका कलर वायलेट या पिंकिश हो जाता है. ठीक है, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है. वी विल नॉट टॉक अबाउट इट हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नैनो को क्या किस तरीके से समझा जाता है. आप एक पेंसिल या कोई एक पार्टिकल ले लो और उसे कट डाउन करते रहो. ठीक है, उसको इतना कट डाउन कर दो कि वो 10 रेज़ पावर माइनस 9 के डायमेंशन में चला जाए. दैट इज योर नैनो पार्टिकल. उसी से डिराइव होती हुई एनर्जी होती है या टेक्नोलॉजी होती है नैनो टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किस किस में करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू डिसैलिनेट वाटर, ट्रीट पॉल्यूटेंट्स, मेक सोलर सेल्स, जो कि एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर फ्यूल सेविंग में यूज करते हैं, या फिर फॉसिल कंजर्वेशन में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. बट जो मेजर यूज है वो आपका सोलर सेल डिजाइनिंग में है नैनो टेक्नोलॉजी का, या फिर पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट करने में. तो ये एक इजीली अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी और ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली, जो कि अभी हमारा टॉपिक है, तो उसके लिए यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, सोलर सेल्स. ठीक है,
अब आता है आपका टॉपिक ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? हेलो, नैनो टेक्नोलॉजी सबको समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. ओके, निहारिका, आशिमा, Yes, स्नेहा, ma'am. ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, तो उससे डिराइव होती हुई जो भी टेक्नोलॉजी होती है दैट इज योर ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी। तो वन सच एग्जांपल इज योर सोलर पैनल्स। उसमें आपकी नैनो लेवल की कोटिंग्स होती हैं, डिफरेंट ग्रुप जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी, और ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब बात आती है ग्रीन केमिस्ट्री की। टेक्नोलॉजी की बात कर ली, बिल्डिंग की बात कर ली, अब है ग्रीन केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री इज बेसिकली chemists are addressing complicated issues for clean chemistry, which means judicious use of chemistry for prevention of pollution। तो इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट इज मॉडिफाइंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। सेकेंड टर्म्स, ये टर्म्स याद रखना बेटा सभी लोग, ठीक है। मैं एक लास्ट में एक आर्टिकल एक शॉर्ट नोट भी दे दूंगी। सो टर्म्स कई बार एमसीक्यूज में आ जाती हैं। सो बायो रेमिडिएशन इज वन ऑफ द टर्म्स, ठीक है। सो व्हाट इज बायो रेमिडिएशन? It means the use of either naturally occurring or deliberately introduced your microorganisms to conserve or break down environmental pollutants in order to clean the pollutant site। तो बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? बायोरेमिडिएशन का मतलब है, लिख लो चाहे इसको पेन से लेकर के, बायोरेमिडिएशन का मतलब है किसी भी पॉल्यूटेंट साइट पे या तो नेचुरली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, या फिर आप डेलिबरेटली मतलब खुद से वहां पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालो जो कि पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर दें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी केमिकल और एनी हाईफाई टेक्नोलॉजी, आप नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हो, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, और दिस इज व्हाट इट्स मेंट बाय बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन के बारे में हम अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स है, यूनिट्स हैं, उनमें ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो, बायोरेमिडिएशन का मतलब किसी पॉल्यूटेंट साइट पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालना जो कि पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर दें, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली रिएक्शन मीडिया, मतलब ऐसा रिएक्शन मीडिया आप लगाओ जिसमें कि ना तो रिएक्टेंट आपका टॉक्सिक हो और ना ही प्रोडक्ट टॉक्सिक हो, ठीक है। तो एक जो ग्रीन केमिस्ट होगा, ठीक है, उसका ये सारा काम होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली रिएक्शन मीडिया उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी। इस एटम इकोनॉमी पे जब हम ग्रीन केमिस्ट्री पूरी यूनिट पढ़ेंगे तब इसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एटम इकोनॉमी? एटम इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितने आप रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो उतना ही आपका प्रोडक्ट्स बन जाए, ठीक है। ये एटम इकोनॉमी है। तो जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना ही अच्छा आपका रिएक्शन होगी। अगर मैं आपको दो रिएक्शंस दे दूं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ए है, दूसरा रिएक्शन बी है, हम बहुत लाइटली इस टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे बिकॉज हमें आगे ये पढ़ना है। तो एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना आपका रिएक्टेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट बन जाए, तो आपका रिएक्शन एक ग्रीन रिएक्शन के अंडर आता है, ठीक है। अगर ये रेशियो कम है तो फिर आपकी जो रिएक्शन है वो ग्रीन रिएक्शन के अंडर नहीं आती है। जैसे कि अगर कोई दो मोटे मोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं कि एक रिएक्शन ए है जिसमें कि एटम इकोनॉमी है 45, एक रिएक्शन बी है जिसकी एटम इकोनॉमी है 80। तो जो बी रिएक्शन है 80 वाली रिएक्शन है वो बेटर मानी जाती है बिकॉज उसमें रेशियो ज्यादा है, जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो वो एक जो रिएक्शन है वो ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन रिएक्शन है, ठीक है। इसको सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए। So to be green chemistry is to be used effectively. It should be cost effective, economically viable. Viable means it should be economically good. ठीक है। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो कि सिर्फ इस जनरेशन में यूज ना हो, वो आगे भी यूज हो सके। एंड इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल ऑल्सो।
और ये कब होता है, सोशली एक्टेबल तब होती है जब ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और लॉन्ग टर्म चल सकती है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सोशली एक्सेप्टेबल। तो ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, बायोफ्यूल्स है, ठीक है, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स है, या फिर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल, ओशन एनर्जी। तो ये सारा जितना भी टॉपिक है ये आपका ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये सारे टॉपिक्स आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें से कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आगे निकल के आएंगी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो वन शुड बी एबल टू कंसिडर these points. तो आज इसे हम यहीं पे एंड करते हैं and let's move to the next interesting topic. Okay. So when we have talked about green chemistry, importance of environment, objectives और उसका क्या फायदा है, ये सब हमने पढ़ लिया है. Now what we have to do, we have to take into consideration the next topic, which is your environmental studies. Hello. 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 यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम। ठीक है, तो अभी आज की जो फर्स्ट टॉपिक है उसके नोट्स में शेयर कर दूंगी, उसको आप गो थ्रू कर लेना। जो करंट टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजी, इकोसिस्टम, और यहाँ से आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो कैन एनीवन टेल मी कि ये जो पिक्चर है आपकी स्लाइड पे शेयर हो रही है, ये किस चीज का है, तो ये आइडेंटिफाई करके बता सकता है? ये मैंग्रोव्स है, ठीक है, सुंदरबंस में जो, या फिर केरला के बैक वाटर्स होते हैं उस टाइप का ये मैंग्रोव्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर इमेज इज अ इमेज शोइंग इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ये इमेज, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड क्विकली। When we talk about this particular topic, हम इसमें कंसिडर करेंगे इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, ठीक है। सो contents are defined more here and go through them. So what is ecosystem or what is ecology? So this term was coined by Ernest Haeckel in 1869, and this particular topic or ecology is defined as a scientific study of relationship of the living organism with its environment. So ecology is scientific study of relationship of organism with its environment. Now the next point is it deals with the way each and every organism is connected to its environment and how the environmental factors affect its life. So these are the points which we can consider when we talk about ecology. So environment and its components. So everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is called its environment, and it's defined as a sum total of living and non-living components. So all organisms
Hello. Yes, ma'am. Okay, so we were talking about environment and its components. So all the organisms, be it a virus or man, they are all interdependent on other organisms for your food, energy, water, oxygen, shelter, or other needs. And this relationship between an organism and its environment is highly complex, and it comprises of both living and non-living components. Okay, so I have put up one image which shows you your ecosystem. और अभी के current situation में तो we all want to do this, go for fishing and trekking and everything. So this is actually the importance of a healthy ecosystem. Okay. So एक environment या ecosystem में जो दो major components हैं वो है आपके non-living and living components. So when we talk about living, it's also called as the biotic component. This particular component here is called as the biotic component. Whereas जो abiotic है वो आपका non-living component है. Both biotic and abiotic components are in flux and keep changing continuously. ठीक है, so एक ecology को balance में रखने के लिए both of these components should be in a true balance. क्योंकि कोई भी component कम या ज़्यादा होता है तो ecology या ecosystem disturb हो जाता है. So what is the list for the biotic and abiotic components? When you talk about abiotic components, it's your green plants, non-green plants, decomposers, parasites, animals, man. जो भी चीजें आपके लिविंग कंडीशंस में आती हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. जबकि जो पैरामीटर्स फिजिकल, केमिकल या कोई भी पैरामीटर्स जो कि नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं, दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, ग्रेविटी, टोपोग्राफी एंड रेन. सो ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. और जो बेसिक फैक्टर है वो ये कि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स वे. ऊपर से देखने में ये ऐसा लगता है कि they are not affecting us, but each and every day every component is affecting human or other organisms life. So let's just take an example of fish. So when we take an example of fish, जो abiotic components हैं जो कि उसको affect करते हैं वो है आपके light, temperature या nutrients in water, oxygen and other organic matter. But when we talk about biotic components, तो biotic components में microorganisms called as planktons, aquatic plants, animals, ये उसके biotic environment में आते हैं. ठीक है, ये जो सारा part है, this is your abiotic environment. अब इसमें हमने एक term पढ़ी है planktons. ये question आपका MCQs में भी आ सकता है और repeatedly आगे के chapters में use भी हुआ है. ठीक है, so let's just understand what is a plankton. Okay, planktons are diverse collection of organisms found in water or air that are unable to propel. This is important. मछलियाँ होती हैं या फिर crabs है, whatever sea animals हैं जो कि करंट के साथ, वाटर करंट के साथ या फिर विंड करंट के साथ मूव कर सकते हैं. They are basically able to propel. But जो planktons हैं वो विंड के साथ या करंट, वाटर करंट के साथ मूव नहीं कर सकते. These are the individuals or organisms constituting the planktons or called as planktons. ठीक है, तो एक इमेज मैंने आपके लिए रखी है. So these is your planktons. ठीक है, ये सारे आपके planktons कैटेगरी में आते हैं. अब ये वाटर में प्रेजेंट तो होते हैं. They have got a very very small size and they are eaten up by fishes. ठीक है, तो ये फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि बायोटिक एनवायरनमेंट है एंड दिस इन्वॉल्व्स योर प्लैंक्टन्स. तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि प्लैंक्टन क्या होता है या जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये बहुत ही कॉमन टर्म आपको डिस्कवरी या जो भी चैनल्स हैं उस पर सुनने मिल जाएगी. सो प्लैंक्टन इज an organism which is not able to propel themselves against wind or current. जिस डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा उसी में मूव करते रहते हैं. तो
ये आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात हो गई। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो जो भी लैंडस्केप्स या जो भी आप अपने आसपास देखते हैं विच इज अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि नेचुरल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जितनी भी सैंक्चुरीज हैं, पार्क्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। जबकि जब आप एक्वाटिक सिस्टम की बात करते हैं तो मरीन, फ्रेश वाटर या फिर एस्चुराइंस। एस्चुराइंस क्या होती है, कोई स्टूडेंट बताएगा 27 में से? या एस्चुरीज क्या होती है? एस्चुरीज एक वो एरिया है जहाँ पे कि जो रिवर है वो आपके सी से मर्ज होती है। वहाँ पे जो स्पीशीज मिलती हैं, प्लीज नोट इट डाउन, विल टॉक अबाउट इट फर्दर, बट फॉर योर मेमोरी, एस्चुरीज या एस्चुराइन इकोसिस्टम इज द वन जो कि जहाँ पे रिवर और सी मर्ज होता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पे एस्चुरीज या एस्चुराइन इकोसिस्टम मिलता है। यहाँ पे ऐसी स्पीशीज मिलती हैं जो कि सलाइन वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पूरे पिक्चर में ये एक टर्म है जो कि डिफरेंट है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। एस्चुरीज मतलब सी और जो रिवर है उसका जो मर्जिंग पॉइंट है, दैट इज योर एस्चुरी, ठीक है। और वहाँ पे मिलने वाला इकोसिस्टम इज एस्चुराइन। और यहाँ पे जो स्पीशीज होती है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, वो ये कि वो दोनों टाइप के जो वाटर है, चाहे वो सी का सेलाइन वाटर हो या फिर रिवर का फ्रेश वाटर हो, दोनों टाइप के वाटर्स में दे आर एबल टू सर्वाइव। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। लोटेक, लेंटेक, विल टॉक अबाउट इट मोर। आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम में आता है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। खेत जो अभी आप ह्यूमन मैनकाइंड यूज करती है एग्रीकल्चर के लिए, या फिर एक्वेरियम्स हैं, अर्बन इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। सो वन शुड बी एबल टू। और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड so students, let me end the class here today. कल की क्लास में we are going to take up a different topic. I think the internet is unstable. Hello.
I don't know if you all can hear me. I think there's some internet issue, so I'm ending the class here. And today, tomorrow, we're going to pick up the class.